लेवल VA टीचर्स यूनियन तरफ ओडिशा भुवनेश्वर तरफ रही लेटर नंबर 51 7/2/26 चीफ कन्वेनर प्राथमिक शिक्षक महासंघ को दि जाइए। सर विथ ड्यू रेस्पेक्ट वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट 3 मेंबर्स श्री जितेंद्र मुदुली, प्रशांत कुमार सेठी, मनोज कुमार सामल of level VA teachers union to participate in the meeting scheduled for tomorrow on the invitation of the महासंघर इनभाइटेशन अनुसार से जाइछन्ति despite repeated representation, discussion and assurance, the absence of concrete action has compelled teachers to believe that strong and united steps are now inevitable. In this context, we humbly submit that the time has come for Mahasangha to seriously consider the option of mass leave, a collective and democratic form of the protest. A well-planned and united mass leave taken with discipline and clarity of purpose will send a clear and powerful message to the authorities regarding the seriousness of our demands. Delay at this stage may weaken collective morale and dilute the strength of our movement. जेहेतु सरकार सीरियस होना तेणु आमको सीरियस होगा पड़ो, स्ट्रंग एक्शन होगा पड़ो। स्ट्रंग एक्शन अर्थ रही मास लीव को श्रृंखला भाव नापी लेवल VA महासंघ को परामर्श देता। वी देयरफॉर ऑनेस्टली रिक्वेस्ट द महासंघ लीडरशिप टू टेक डिसिसिव स्टैंड एंड इनिशिएट स्ट्रॉन्ग स्टेप्स इंक्लूडिंग मास लीव in consultation with all constituent organizations to safeguard the dignity and rights of teacher. We repose full faith in your leadership and hope for the timely and resolute decision in the larger interest of the teaching community. The inclusion of the said representatives will help ensure broader coordination, collective understanding and unity among allied teacher organizations. यह एकता सृष्टि करिबो। तेणु ये अनुरोध करथिले लेवल VA टीचर्स संघ जो कोर कमिटी माने रहिचंती तांकर निवेदक। देखिबा परवर्ती अपडेट। नो फंड्स फ्रॉम द सेंटर पे टीचर्स एनीवे, सुप्रीम कोर्ट्स मेसेज टू स्टेट्स। जदि कौनसी फंड्स आसुना सेंटर रु तेबे टीचर मानकु पे कर अर्थात दरमा दियो जेकोसी उपाय। सुप्रीम कोर्ट्स मेसेज टू स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट मेसेज यह स्टेट को थिला। तो निश्चित भाव देखो बर्तमान बड़ खबर आसी फ्रॉम ए मोर देन ए डिकेड थाउजेंड्स ऑफ पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर इन उत्तर प्रदेश अपर प्राइमरी स्कूल have lived inside a familiar Indian paradox. The state's schooling promise grows louder, but the people asked to deliver it are kept on a wage that barely moves. तो निश्चित भाव देखो गोटे बड़ खबर आसी पहुँची। एक दशंधि अधिक समय धरी पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर उत्तर प्रदेश अपर प्राइमरी स्कूल कार्यरत। से स्कूल प्रमिज ड्यूटी बाउंड से रही 13-14 अंडर दि सर्वशिक्षा अभियान नाउ सबज्यूम्ड इनटू समग्र शिक्षा। से सर्वशिक्षा अधीन 2013-14 अधिक पोस्टिंग होते। बर्तमान जहाँ समग्र शिक्षा फिक्स्ड ऑनरारियम दि जाता 7,000 टंका तादेर कंडीशन थिला से अन्य कौन चाकरी को ग्रहण करें ना। दिस वीक द सुप्रीम कोर्ट कट थ्रो द पेपर वर्क एंड द ब्लेम शिफ्टिंग टू in a remarkable judgment. It held that a state cannot justify low or withheld honorarium by citing the center's failure to release funds. यह सप्ताह सुप्रीम कोर्ट कहते जे स्टेट्स बाहाना देखई पारिबो नहीं, सेंटर देउ नहीं ता शेयर मु कम दरमा देबी बोली बाहाना देखई पारिबे नहीं। जेकोसी उपाय से मानको दरमा देबे। 7 subsection 5 of the Right to Education Act, which places an overriding responsibility on state government to provide funds for implementation and underline a clear टीरे मध्य से सेक्शन लिखा जाइए ओवरराइडिंग करेंगे अर्थात अधिक अर्थ देवे स्टेट। सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 द केस ए डिकेड लॉन्ग टेम्पररी जॉब दैट नेवर एंडेड। द डिस्प्यूट ट्रेसेस बैक टू ए 2013 गवर्नमेंट ऑर्डर through which Uttar Pradesh decided to appoint contractual instructor for upper primary school for class 6 to 8 to teach physical education, art education, work education at a fixed honorarium of rupees 7,000 per month. The appointment were made through an advertisement issued in February 2013
and teachers were engaged on 11-month contracts renewed year after year. The apex court has noted a critical clause in these contracts. Instructors were prohibited from taking up any other full-time or part-time employment. एवं एग्रीमेंट रे लिखा जाइए से कौन पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो कौन जगह चाकरी करें ना इन रियल टर्म्स दिस मीन्ट ए वर्कर डेस्क्राइब्ड एज पार्ट टाइम could be locked into a single income stream, however low, with no lawful way to supplement it. Writ petition reached the Allahabad High Courts. A single judge directed a payment of rupees 17,000 per month from March 2017, but the High Court's division bench later limited the entitlement to 2017-18 alone. Both sides appealed. Instructor argued the hike could not be cut off, and the state argued it should not be made to shoulder the cost if the center did not pay its share. तो ए दुई पक्षर झगड़ा भितर बड़ी पड़ी पार्ट टाइम टीचर जदि सेंटर शेयर न देव स्टेट मना करुच्ची मु देवी नहीं सुप्रीम कोर्ट कही द स्टेट हैज बीन टोल्ड टू स्टॉप ट्रीटिंग दिस एज ए फंडिंग डिबेट एंड स्टार्ट ट्रीटिंग इट एज ए पेरोल ऑब्लिगेशन एठी गोटे डिबेट चली नहीं जन को दरमा को दबार कथा पड़ी सुप्रीम कोर्ट कही इंस्ट्रक्टर्स आर एंटाइटल टू रुपीज 17,000 पर मंथ ऑनरेरियम फ्रॉम 2017-18 onwards. उत्तर प्रदेश मस्ट स्टार्ट पेइंग रुपीज 17,000 पर मंथ फ्रॉम 1 एप्रिल 2026 एवं एरियर मध्य क्लियर करा दरकार 7-6 मास मध्य जहाँ सुप्रीम कोर्ट दोहराई ट्रेल 7,000 to approvals. Then back again, judgment pins down the timeline. The government preferred to blow. In 2016-17, the state proposed an increase to rupees 15,000, but the National Project Approval Board rejected it. सत कथा रही जे या 60-40 रेशियो रे चले जहाँ को पे एंड रिकवर बोली कह जाए. State should not be forced to bear the center's unpaid share. Supreme Court response is anchored in AT Act itself. Section 7 does provide for shared responsibility, but Section 7 subsection 5 explicitly makes the state government responsible to provide funds for implementation, taking into account central assistance and its other resources. From that, the court's reasoning follows as governance logic. Intergovernment accounting cannot become a reason to keep classrooms running on delayed or depressed pay. जो सुप्रीम कोर्ट क्षुब्ध होते एवं कही जे पीएबी सेंटर कथा न कही स्टेट क्लासरूम सिचुएशन को लक्ष्य करी समाधान करने उचित. तो निश्चित भाव ओडिशार पार्ट टाइम टीचर मानमती ये निर्देश बलवत्तर रही लढ़ंतु न्याय पाइबे. देखा परवर्ती अपडेट. हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी तरफ स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट रु 117 नंबर लेटर एवं 7/2/26 डॉक्टर सनातन पंडा पाखु आसी. मेंबर कन्वेनर सरोज कुमार पंडा को जनरल सेक्रेटरी ऑल ओडिशा एलिमेंटरी टीजी टीचर्स एसोसिएशन डिस्कशन ऑन डिमांड्स इश्यूज ऑफ एलिमेंटरी टीजी टीचर्स. डिस्कशन और डिमांड पाई एलिमेंटरी टीजी टीचर्स मानकर आसी खबर. सर इन इनवाइटिंग ए रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड एबव आई एम टू से दैट द हाई लेवल एक्सपर्ट कमिटी constituted by School and Mass Education Department under the chairmanship of Sri Ashok Kumar Tripathi, IAS retired, has been pleased to discuss issues, demands of elementary TG teachers on 9th February 2026 at 12:30 PM. 9 फेब्रुआरी अर्थात आज 12:30 से कॉन्फ्रेंस हॉल आम गौरव आम कॉलेज परिचालना संगठन A1 ब्लॉक 5th फ्लोर तोशाड़ी भवन सत्यनगर भुवनेश्वर ठारे डिस्कसन होगा जाऊँगी. बीएड टीचर मैंने जो मैंने एलिमेंटरी से मानकर ये समस्या कौन रही ये रही बड़ खबर एवं कहुई 2 जन आउ 2 जन मेंबर नहीं जापरे. कॉपी दि जाए चेयरपर्सन को चेयरपर्सन को मेंबर को एवं एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट को एवं प्रिंसिपल PS टू कमिश्नर कम सेक्रेटरी को. तो निश्चित भाव गोटे बड़ खबर रही. देखा परवर्ती अपडेट.